students. Here we are starting up with the next topic of chapter 5th, that is organizing. We have already discussed about the delegation in the previous videos or in previous classes. I hope you all are getting, because these are the important terms, and in CBSE most of the case studies are coming regarding these topics. Now we are starting with the next topic, that is centralization and decentralization. These both are related terms in organization because both are very important. We have already discussed about the principles of centralization and decentralization in chapter 2nd. The principle is given by Fayol. Now centralization. When the power or when the authority is in few hands, we have already studied about the levels of management. Top level, which takes the most important decisions regarding the company or organization. So when the power is in the hands of top level, that organization is centralized. Means an organization is centralized when the decision making authority is in the hands of top level management only, which means when the top level management only take the decisions, that organizational structure is known as centralized. And when we are talking about decentralization can be defined as even and systematic working of authority at even level of management. Even means in decentralization, every employee gets some share in the authority. Every employee has the power to take decision. Decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है तो वो सही नहीं है, और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है तो वो भी सही नहीं है. क्योंकि क्या होता है, द कंपनी हैज़ टू फॉलो अ मिक्स्ड पॉलिसी. अगर वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड है तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजर्स आर मिसयूजिंग देयर पावर्स. द टॉप लेवल मैनेजर्स, द टॉप लेवल पर्सनस आर मिसयूजिंग द पावर्स. एंड इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, तो जो अथॉरिटी होती है दैट इज़ मिसयूज्ड बाय ऑल द मैनेजर्स, ऑल द लेवल ऑफ मैनेजर्स. तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिक्स्ड पॉलिसी को अपनाना है, कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी ना हो और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी ना हो. नाउ इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, every level of management have to keep the important matters such as financial decisions, structural decisions with the top level management only, and share the common with the people working at different levels, as generally an organization can never be completely centralized or decentralized. Yani important decisions lie only with the top level managers, and which are common, the decisions which are common, they can only be shared with middle and lower level. Now I hope you all have cleared the meaning of centralization and decentralization. Now talking about the features of decentralization on the next page. Features. First feature is decentralization is much more than mere transfer of authority to lower level. Decentralization का मतलब ये नहीं होता कि हमने केवल अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया है. Each and every decision taken by top level management is to be shared with the lower level managers also. तो authority के अलावा भी काफ़ी कुछ होता है. It implies selective dispersal of authority. यानी authority तो हमको शेयर करनी है लेकिन select करके करनी है. अगर हम हर चीज़ को middle और lower level managers के साथ शेयर कर देंगे तो regarding the financial matter जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, विच इज़ टू बी टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली. तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में होने चाहिए, लेकिन सिलेक्ट करके हमें अथॉरिटी को शेयर करना चाहिए. द कॉमन अथॉरिटीज़ आर टू बी शेयर्ड विथ मिडिल एंड लोअर. इट शोज़ द बिलीव दैट पीपल आर कम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल. यानी अगर हम अपनी अथॉरिटी को शेयर कर रहे हैं तो the persons, the managers or the employees who are working under middle level or lower level, who are working at the position of middle or lower, they are competent, capable
यानी क्वालिफाइड इनफ, और रिसोर्सफुल यानी हमारे लिए रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉयज़ एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं मिडिल और लोअर लेवल पे वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हम भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। वाई? फॉर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर्स, यानी जो इतने कैपेबल इनफ हैं कि डिसीजन ले पाएँ, उनकी नीड विच इज़ फॉर अस, यानी हमको नीड है ऐसे पर्सन्स की, ऐसे एम्प्लॉयज़ की हु आर द बेस्ट डिसीजन मेकर्स, उन्हीं को हम अपनी अथॉरिटी को शेयर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोज डिसीजंस विच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल एंड दोज दैट विल बी रिटेन्ड एट हायर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले तो केयरफुली स्टडी करता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी डिसीजंस हैं जो कि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने पास तक रख सकते हैं, यानी हायर लेवल को रिटेन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जो हम शेयर कर सकते हैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, कि हम कुछ अथॉरिटी उनको भी शेयर कर दें। नाउ दीज आर द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन delegation and decentralization. Now these both are the two different terms. Delegation implies sharing of authority. Delegation implies sharing of authority, and decentralization implies sharing of authority or sharing of decisions to everyone. These both are the same, but they are having the different meanings. इनके बीच में relation create हो रहा है. That relation we are going to study. First, decentralization is the extension of delegation. Extension यानी कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसको बढ़ा देना, बड़ा हुआ, a larger part of anything. Extension means a larger part of anything. अगर हम delegation को extend करते हैं तो वो decentralization बन जाता है. In delegation we multiply the authority with 2. Delegation में क्या होता है, हम अपनी authority को share करते हैं with our सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करना, दैट इज़ डेलीगेशन. इट मीन्स यहाँ पे अथॉरिटी को मल्टीप्लाई किया गया है विथ 2. अब 2 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक मैनेजर होता है हु इज़ द सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट होता है. तो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को जब अथॉरिटी शेयर करे, दैट मीन्स 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डेलीगेशन. एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो अथॉरिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय मैनी. नाउ व्हाई अथॉरिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय मैनी इन डिसेंट्रलाइजेशन? बिकॉज इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजर्स आर इंक्लूडेड. डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब डिसीजन लेने का पावर सबके पास आ जाए, विच मीन्स टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, दैट मीन्स मैनी, तो वो होता है अपना डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाई अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय मैनी इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इन केस ऑफ डेलीगेशन? बिकॉज systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization. अगर हम systematic working के साथ काम करें, अगर systematic delegation हर लेवल पे परफॉर्म हो रहा है, यानी कि ये है टॉप लेवल, फिर ये है मिडिल लेवल और फिर ये है लोअर लेवल, अगर ये डेलीगेशन सारे लेवल्स पे परफॉर्म हो रहा है तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इज़ परफॉर्मिंग. इफ़ डेलीगेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल्स, अगर हम सर्टेन लेवल्स पे, जैसे मैंने टॉप लेवल पे डेलीगेशन को परफॉर्म किया और मिडिल पे नहीं किया, तो क्या होगा? ओनली देन देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? नाउ सी एग्जाम्पल. इफ़ द डायरेक्टर्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स. प्रोडक्शन हेड को टारगेट दिया मैंने कि दे हैव टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर एनम और ऑथराइज़ किया टू हायर द रिक्वायर्ड वर्कर्स.
प्रोडक्शन हेड को मैंने ये भी ऑथोराइज़ किया, यानी ये परमिशन दी कि वो वर्कर्स को हायर करें, उनकी सैलरीज डिसाइड करें। ये सब डिसीजन लेना है उनको, प्रोडक्शन हेड को, तो मैंने उनको डेलीगेट किया है, हमने उनको अथॉरिटी दी है। रिक्वायर्ड वर्कर्स डिसाइड देयर सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशंस। अब प्रोडक्शन हेड फर्दर क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है विद द प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव द टारगेट एंड सेलेक्ट द वर्कर्स। यानी प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को शेयर किया। अब प्रोडक्शन मैनेजर आगे क्या करता है, ही शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सुपरवाइजर्स। ये फिर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर is sharing with his supervisors who directly deal with the workers। अब वो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं और फिर सिलेक्ट कर रहा है वर्कर्स को। अब शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन डायरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन हेड, मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स विल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। यानी कि हर लेवल पे हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है, जो हमको ये बता रहा है कि इट विल रिजल्ट इन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स आवर वर्क इज़ बीइंग डन सिस्टमैटिकली। दैट इज़ वाई वी से, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक डेलीगेशन लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि ये डिसेंट्रलाइजेशन बनाता है। तो डेलीगेशन में हम अथॉरिटी को 2 पर्सनस के साथ शेयर करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो in case of decentralization we multiply the authority with many। I hope the first relation is cleared by you all. Now moving to the second one, that is delegation is necessary in every organization but decentralization is optional। Decentralization is not necessary, delegation is the essential part, because without delegation we cannot run an organization successfully। So no organization can work without using the concept of delegation, as there is no individual who can do all the work himself only। कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो खुद अकेले काम कर पाए। डेलीगेशन एक टूल है विच इज़ यूज टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर्स। यानी दूसरों से काम करवाना, अपनी अथॉरिटी को पास करना, अपने पावर्स को पास करना टू अदर्स। अब अदर्स कौन है यहाँ पे, द वर्कर्स, द एम्प्लॉयज़, दैट इज़ डेलीगेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, एंड ओनली टॉप लेवल कैन नॉट मैनेज इट। केवल टॉप लेवल उसको मैनेज ना कर पाए। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे ऑपरेट हो रही हो, इन दैट केस डिसेंट्रलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब प्रेजेंट एरा में देखते हैं हम, प्रेजेंट टाइम में ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन fast decision is needed and quick decisions can be taken through decentralization। If we are not having enough time to take decision, then decentralization is to be followed, and only with the help of decentralization flexibility and freedom of action is coming। यानी कि हम एक्शन लेने का फ्रीडम हमको मिलता है, but still many organizations are working with little or no decentralization। So it is a matter of choice and preferences of top level management and not compulsory। So therefore we can conclude here that decentralization is not much necessary, but delegation is very important। Now here we are leaving study about the relation among delegation and decentralization, and the problems of the same we are going to discuss in Zoom class। Thank you so much।